glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Very good evening to all my dear friends. Welcome to Unacademy. दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऐश्वर्य, पढ़ाता हूं आपको KTSC के लिए। मेरा मास्टर जो है वो IIT दिल्ली से है, बीटेक जामिया मिलिया कॉलेज से। 4 times I have qualified GATE with my best AIR tutorials। 7 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस और 2 सालों का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास, और ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको करवाता हूँ ऑन दी वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑफ Unacademy। माय डियर फ्रेंड, दिस इज my code which you guys can apply before going for any Unacademy Plus subscription, and this code is valid in GATE and ESE. Also you guys can consider this code as a universal code at Unacademy. Means any of your friends or relatives are preparing for SSC, JEE, IIT, JEE, CBSE, NEET, CAT, etc. So you guys can always promote and support this code. Okay. Now let me tell you one thing, why do we need Unacademy Plus or Iconic Plan? प्लस में हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी। बोथ द लैंग्वेजेस कोर्सेज आर अवेलेबल एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आर आल्सो देयर। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक प्लान व्हिच इज द सुपरसेट ऑफ प्लस, वेयर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ पर्सनल कोच who is going to plan your study, who is going to keep the study booster session for you, who is going to analyze your test at the personalized level, and not only this, you are also going to get the specialized notes and practice sets। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आप लोगों को यहाँ पे दिए जाते हैं। और दोस्तों, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्लस और आइकॉनिक, सो फील फ्री टू यूज दिस कोड AISH10। अनअकैडमी KTSC के सब्सक्रिप्शन बढ़ सकते हैं कभी भी, सो प्राइस हाइक इज कमिंग सून। इफ यू वांट टू बीट दिस प्राइस हाइक, देन गेट फ्लैट 10% ऑफ बाय यूजिंग दिस कोड AISH10। एंड सिमिलरली अगर प्लस के आपको 1.5 and 2 ईयर प्रोग्राम चाहिए तो नो कॉस्ट EMI के साथ आप इनको ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड AISH10।
सिमिलरली अगर आपको आइकॉनिक के 1.5 and 2 year प्रोग्राम्स चाहिए तो यहाँ पर भी आप अवेल कर सकते हो आवर नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस विद एन इंस्टेंट ऑफ ऑन by using AISH 10. Okay, so R1 batch is there and where M and N batch has been started, fluid mechanics, so N batch में start हो रहा है irrigation engineering, and similarly work batch is also here. Last 10 year questions के लिए you guys can use the AISH 10 code और आपको मिलेंगे full solutions with the detailed solution you can say if you are going to use this code. दोस्तों वेलकम टू दी सेशन ऑन 15 क्वेश्चन फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। तो इस क्वेश्चन में मैंने छोटे छोटे 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए हैं फ्रॉम दी एंटायर सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन और इसको करते हैं डिस्कस एक एक करके। एंड वन थिंग इज मोर दैट दिस सेशन इज रिकॉर्डेड, सो मे बी आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर डाउट इन दिस, बट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू कम लाइव नेक्स्ट टाइम, so we will be discussing such things if in case any doubt is there. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट से। so here is the first question. A cable is subjected between 2 points 30 meter apart which is located at same level and it carries a UDL of 20 kilonewton per meter. ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। सो द आइडिया इज टू टेस्ट योर नॉलेज, योर लेवल कि वेयर आर यू गाइस स्टैंडिंग राइट नाउ। ओके, सो दिस इज द केस, ये ए है, ये बी है। This is the maximum dip. Reaction आपको पता है, if total span is 30, then these reactions are going to be 30 into 20 600, तो इतना हो जाएगा 300 and it's also going to be 300. Okay, so horizontal forces are also there, horizontal forces are also there. ये रोलर नहीं होगा, ये रोप है ना, ये केबल है, so it's also going to be fixed only, means with respect to rotation. So let's suppose these are the horizontal reaction which are same because summation of horizontal forces must balance. तो अगर यहाँ पे आपको horizontal tension niकालना है, so this horizontal tension is also equal to here's tension because summation of Fx is equal to 0. So what we can do, we can simply use the sag of this cable which is 8 meter, and using this we can equate the bending moment at the center. So bending moment at the center is going to be how much? It's going to be h into 8 due to this horizontal force, and it must be equal to W L square by 8, W L square by 8. So h जो आ गया मेरे पास, that is 20 into 30 square upon 8 into 8. तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो शायद b आएगा, मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। 20 into 30 square divided by 8 into 8, yes 281.25. so option B is correct. I hope आपका भी आंसर ठीक आया होगा। so all the best for your next question, and this next question I am taking from railway engineering, oh sorry airport engineering. वैसे तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये, वैसे तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है, बट आई होप आई एम नॉट हाइडिंग दिस। तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, चलो आप लोग अटेंड कीजिए जब तक मैं देखता हूँ कि आई कैन डू समथिंग विद द क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो।
ओके okay, yes. So I think it's relatively better. So one metric chain is given 20 meter, and we have to find the effective. आप भी देख सकते हो. I am hiding myself. You have to find the effective gradient of runway is how much. Okay, and end-to-end runway is given to you, and gradient thing is also given to you. So आप फिर से क्या करोगे? You guys have to stop the pause this video. और इस वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपना सॉल्यूशन निकालोगे एंड वी विल बी चेकिंग इट हियर. ओके, सो डाटा इज गिवन टू मी. सो इफ आई एम राइटिंग द चेनेज हियर एंड एलिवेशन हियर. तो चेनेज में वी डू हैव 0 5. चेन इंटरवल इज 5. 5 से 15, 15 से 30 और 30 से 40. These many chains are there. Now how to calculate the elevation? Elevation के लिए क्या करेंगे डियर? 20 meter is the length and difference is 5. So 20 into 5. So let's suppose 100 elevation is there, and 20 into 5 is there, plus the benchmark is 20 into 5. What is the gradient here? Gradient is plus 1. Plus 1. So it's coming out to be 101, and similarly here it is -1. So 1% पे पड़ गया तो -1 पे it's going to be 99, and next is 0.8. So 0.8 is there, so 101.4 and 101.8. So all these elevations are given to you. Now the effective gradient is maximum difference in elevation divided by total runway length it's coming out to be 0.35%. It's coming out to be 0.35%. Okay, so option C is the right. Okay, चलिए, I hope ये क्वेश्चन भी आपका रहा होगा ठीक. And let's move on to our next question. It is a complete theoretical question. A unit hydrograph has 1 unit of, very simple, सबका ठीक होगा है ना, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5. तो ये होगा डायरेक्ट रन ऑफ. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो यूनिट होती है 1 यूनिट क्या होता है उसके ऊपर डायरेक्ट रन ऑफ होता है. चलो चौथा क्वेश्चन है. द इरिगेशन वाटर हैज टू बी सप्लाइड टू द क्रॉप व्हेन द मॉइस्चर लेवल फॉल्स बिलो द फील्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग पॉइंट, बिलो द विल्टिंग पॉइंट. सो क्या इसमें ठीक है? बिलो फील्ड कैपेसिटी में आप प्रोवाइड करते हो, या विल्टिंग पॉइंट तक प्रोवाइड करते हो, या बिलो विल्टिंग पॉइंट तक प्रोवाइड करते हो. सो आप इरिगेशन वाटर तक प्रोवाइड करते हो व्हेनेवर योर वाटर लेवल फॉल्स बिलो द विल्टिंग पॉइंट, बिलो द विल्टिंग पॉइंट, है ना. सो 3 ओनली. ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली राइट. हाँ, ये है आपका इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दे रखा है. इट्स 1100 and its salvage value is 100. What is the life of the equipment the life of the equipment is given to 5 years. और sinking fund अगर आपको 8% दे रखा है, then you have to calculate the book value at the end of 4 year. ठीक है, तो 4 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है. So very interesting question. It's simply you guys can solve it by linear interpolation. इनिशियल वैल्यू थी 100, 1100 माइनस, और 1100 से 100 वैल्यू जो रह गई ये रह गई 5 सालों में. ओके, सो इट्स 1000
और ये हो जाएगा 1000 और 5 सालों में रह गई तो 200 रुपये, तो 4 सालों में कितनी हो जाएगी? लीनियर इंटरपोलेशन का सवाल है, सो इट्स गोइंग टू बी 800, so 1100 minus 800 is going to be 300. So here as well option C is right here. Okay, so please let me know if you guys are having any doubt. अच्छा डाउट तो मैं ले नहीं सकता, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो we will be discussing such thing here. Okay, चलो अगला आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। And this is from environmental engineering or environmental engineering, और यहाँ पे आपसे पूछा है alkalinity of the water in milligram per liter if initial pH is given to you as 10 and 30 milliliter of 0.02 normal H2SO4 is required to titrate the sample to pH 4.5। मतलब 10 pH से 4.5 जाने के लिए आपको 30 ml 0.02 नॉर्मल ऑफ H2SO4 लग गया, तो आपसे पूछा है कि नाउ व्हाट इज द अल्कलिनिटी ऑफ द वाटर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1 मिलीग्राम, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है आपको। 1 मिलीग्राम ऑफ 0.02 normal H2SO4 is nothing but your 1 milligram of alkalinity in terms of calcium carbonate। स्टैंडर्ड यूनिट यही लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? एक तो उसका एटॉमिक वेट जो आता है दैट इज 100, तो रेफरेंस लेवल हमारा बहुत बेहतरीन हो जाता है if we are going to use CaCO3। now my dear friend, the total alkalinity of 200 ml of water sample is 30 milligram of CaCO3। ओके, अच्छा ये आपको तंग कर रहा होगा मेरा फोटो, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखना क्या, कॉपी पेस्ट। ओके, so 1 milligram of 0.02 normal H2SO4 is equivalent to 1 milligram of alkalinity as calcium carbonate, and total alkalinity of 200 ml of water sample is going to be 30 milligram of calcium carbonate. It is given only, okay, it's given only 30 ml of 0.02 normal H2SO4 is required. Now my dear friend, what is the total alkalinity of the water? So now the total alkalinity of water, यूनिटरी मेथड लगाना है भाई, कुछ नहीं करना। 30/200 मिलीग्राम और ये लीटर में हो गया, सो इट्स 150 आई गेस, यस 150 मिलीग्राम पर लीटर। सो वेरी इजी, मीन्स ऑप्शन बी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन, ये पैटर्न हिट होता है, ओके, काफ़ी फ्रिक्वेंटली है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, एंड इट इज़ फ्रॉम फोटोग्राफी, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको एक एरियल फोटोग्राफ दे रखी है ऑफ ए ट्रेन विच इज हैविंग एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 1400, ओके, और स्केल दे रखा है आपको कितना, स्केल इज 1:7500। फोकल लेंथ आपको दे रखी 15 सेंटीमीटर और 15 × 10⁻⁻² मीटर, और अल्टीट्यूड आपको दे रखा, एल्टीट्यूड आपको निकालना है, अल्टीट्यूड होगा सॉरी, एंड अल्टीट्यूड ऑफ द फ्लाइट अबव द मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल से ऊपर फ्लाइट का लेवल क्या होगा, ओके, और एलिवेशन आपको दे रखा 14। So simply scale we can use. Scale is nothing but focal length of what, h minus h. So if I am going to use
सॉल्व करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट 2525. यस, ऑप्शन बी डियर. इज इट क्लियर? चलो बढ़े आगे. आई होप यू गाइस आर लाइकिंग द क्वेश्चन हियर. चलो बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ. शेड्यूलिंग हेल्प्स इन पर सीपीएम का एक क्वेश्चन है, बट आई वुड बी कॉलिंग इट ए कॉमन सेंस क्वेश्चन. व्हाई डू वी नीड शेड्यूलिंग? प्लानिंग करने के लिए, फाइनेंस कंट्रोल करने के लिए, प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट और कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट इन एन ऑर्डरली मैनर इन इफेक्टिव मैनर. ऑप्शंस पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेड्यूलिंग. ठीक है, प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज प्लानिंग ओनली, फाइनेंशियल कंट्रोल, इकोनॉमिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. बट शेड्यूलिंग से आप एक प्रॉपर तरीके से अपने प्रोजेक्ट को कैरी करते हो इन एन इफेक्टिव मैनर एंड यू हैव सिंपली मेक श्योर दैट नो लैग इज देयर, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इज देयर. So just to complete your given designated task in an effective manner, you guys are doing scheduling. इसलिए करते हैं ना scheduling. तो ये भी आपका common sense question हो गया डियर. चलिए. Now the next question is from testing and it's from highway engineering. The results of ring and ball softening point test on asphalt is given in terms of. इसमें confusion होता है बड़ा, viscosity वगैरह students बोलते हैं, but it's not viscosity. तो जो रिंग एंड बॉल सॉफ्टनिंग पॉइंट के जो आपको रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं टेम्परेचर की फॉर्म में कि कितना डिग्री वगैरह आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट रहता है. सो इसके लिए हम लोग चूज करेंगे नेक्स्ट इज टेम्परेचर. ठीक है, मुझे पता है रिकॉर्डिंग चल रहा है तो चीज़ें काफ़ी जल्दी हो रही है, बट यू गाइस हैव टू मेक श्योर बिफोर वंस आई एम चेंजिंग दी स्लाइड आपको तुरंत वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन रीड करना है. और क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने पहले अपना टाइम लेना है, देन यू कैन वेरीफाई योर आंसर विद माइन. और अगर आपको लगता है कि किसी भी आंसर में कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई मैं गलत हूँ या मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है और या आपका ओपिनियन कुछ और है, तो आपने वो ऑप्शन को लिखना है कमेंट बॉक्स में. एंड वेन एवर आई विल बी लाइव, जो कि 11 तारीख को ही लाइव आऊँगा मैं फिर से. सो टुडे आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे 9 अक्टूबर को. ठीक है, मतलब सैटरडे को, और हम परसों लाइव आएंगे और तब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. इज इट क्लियर हियर? चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फॉर 4 मीटर हेड ऑफ वाटर व्हाट इज द इक्विवेलेंट हेड ऑफ केरोसिन व्हिच इज हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8. ठीक है, मतलब पानी का 4 मीटर का प्रेशर कितनी हाइट ऑफ केरोसिन बैलेंस करेगा. सिंपल आपको प्रेशर ही इक्वेट करना है. अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रेशर exerted by water must be equal to pressure exerted by kerosene. So rho G H so G and T cancel. So simply height of the kerosene जो आ रहा है वो आ रहा है rho of water into 4 upon rho K. So rho K upon rho W is 0.8. So 4 upon 0.8 is how much meter? 8 पंजे 40. So 5 meter. So I would like to go with option number D. Okay. बेसिक क्वेश्चन है बट इतना बेकार भी नहीं है, बुरा भी नहीं है. आई होप बट सबको आंसर मिला होगा इसका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द सब्सटेंस which follow this behavior. It is again from the classification of fluid. Classification of fluid से एक क्वेश्चन है. So if I am going to draw the graph between rate of shear strain and shear stress or velocity gradient or both are same thing.
तो आपको टोटल 6 पैटर्न के ग्राफ मिलते हैं डियर, एंड दोस पैटर्न्स आर okay. So these patterns are dilated, Newtonian, pseudoplastic, rheoplastic, Bingham plastic, and thixotropic. So here you can see at 0, shear strain 0, shear stress is also 0. Okay, and 0.5 पे वैल्यू है 2, 0.5 पे वैल्यू है 2 और 4 पे वैल्यू है 1.1, means it is increasing. Y axis is increasing continuously. So it's like parabola type thing now. So this is dilatant. This I would like to keep dilatant because it is matching my first category. So such fluids are dilatant. Okay. और यहाँ पे देखोगे टाइम के साथ साथ जो shear strength है, जो आपका fluid है, that is also becoming thicker. Rheopactic and dilatant fluids are the type of fluids which are getting thicker along the passage of time. So these fluids are also known as shear thickening fluids. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. It is again from fluid statics and buoyancy flotation. आप कह सकते हैं that a body is going to weigh 30 Newton in a density of 800 kilogram per meter cube, and it's weighing 15 Newton in the density of 1200 kg per meter cube. Now what is the volume of the body in meter cube? सिंपल है, बायंसी का है टॉपिक. 30 न्यूटन बॉडी का वेट होता है डियर. अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा अटेम्प्ट कीजिएगा. ओके, जब मान लीजिए ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज W, सो WB इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड displaced, and second case is that when this WB is in the fluid of density 1200, then the weight is 15 Newton. So this is equation number 2 and this is equation number 1. So if I am going to compare both of them, then I can say that 30 plus okay, so 15 is equal to 400 GB. So V अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका, it's coming out to be option C. In meter cube it's coming out to be option C. ये आपको मीटर क्यूब में आंसर देगा डायरेक्टली. 15 बाय रफली देख लो ना, अगर G का वैल्यू 10 मान लोगे तो 4 या 12 3 point something. Okay, we are getting it. So it's C only. Okay, चलिए. आई होप अभी तक 12 क्वेश्चंस में से कम आपके 8 से 9 क्वेश्चन ठीक होंगे डियर. अगर 8 से 9 क्वेश्चन सो फार यू आर राइट ईमानदारी से, देन यू आर गोइंग गुड फॉर योर गेट 2020 प्रिपरेशन. ओके, 2022 प्रिपरेशन. चलिए, नाउ बेस्ड ऑन द ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, D10, D30 and D60 आर द वैल्यूज ऑफ ए गिवन सॉइल. So D30, D10 आपको दे रखा है 0.23, D30 दे रखा है आपको 0.3 and D60 दे रखा है आपको 0. Now what is Z? Now what is Z? And now what is the dear type of soil? Cu and Cc
These are the two criteria. If my soil has to be well graded, then both of these criteria must be satisfied. And Cu, which defines D60 over D10, this value must be greater than 4 or 6. For gravel to be well graded, it should be greater than 4, and for sand to be well graded, its value must be greater than equal to 6. So D60 by D10 is how much? It's 0.41 over 0.23. So it's 1 point something something. So this 1 point something something is less than 4. So I have to call my soil as poorly graded. No need to even calculate the second criteria. आपको दूसरा क्राइटेरिया निकालने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों में से कोई एक भी फेल होगा तो आपकी सॉइल क्या हो जाएगी? पुअरली ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी. ओके, चलिए. नाउ ड्यूरिंग दिस सैम्पलिंग, ये है आपका फाउंडेशन से या सॉइल सैम्पलर से, ठीक है. ड्यूरिंग ए सैम्पलिंग द ड्राइवर सैम्पलर इज, ड्राइवर की जो लेंथ है ड्राइविंग सैम्पलर की, दैट इज 50 mm और 600 mm. और इस 600 mm में से डियर वेरी बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन, 525 mm ऑफ द सैंपल इज रिकवर्ड. मतलब 600 का एडवांसमेंट हुआ, 600 mm डेप्थ का सैंपलर जमीन के अंदर गया और 600 mm को जब आपने खोल के देखा, उसको आपने अपने बॉक्स में डाला, ठीक है, जिससे आप टोटल रिकवरी रेशियो निकालते हो, तो आपने देखा कि हाँ, इस 600 mm में यू आर एबल टू रिट्रीव 525 mm ऑफ दी सॉइल. ये एक तरह से सम लॉसेज आर देयर, बट दीज लॉसेज आर लिटरली वेरी लेस. तो अगर आप इसको निकालोगे, दिस इज नोन एज TCR, ओके, टोटल रिकवरी रेशियो. सो दिस इज नोन एज हाउ मच? 0.875. तो सबका ठीक हुआ वो मुझे बताया. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर कल फिर मिलेंगे. ये भी हल्का ही रखा है मैंने. तो न्यूमेरिकल्स आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा नहीं दिए, मुझे लगा चलो रिकॉर्डिंग है, ज़्यादा पेन मत लो, बट एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. ऑल सच थिंग्स मस्ट बी नोन टू यू. सो IP इज व्हाट? क्या क्लासिफिकेशन होता है ना, 0.2 35 50. Okay, so like that. चलो, तो दोस्तों इतना ही रखते हैं अपने सेशन में, और कल फिर से एक रिकॉर्डेड सेशन है आप लोगों का, उसमें भी आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चंस और क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे, इजी रहेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होगी. न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आ रहा हूँ परसों लाइव आपके लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज और कल के डाउट्स, अगर आपको कोई है तो. Otherwise, we will be proceeding further with some good level of numericals and questions. And I'm repeating that you guys can expect your question from any topic. Even maths aptitude से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, पर CPM से भी मिलेगा, एनवायरनमेंट से भी मिलेगा, हाईवे से भी मिलेगा, रेलवे से भी मिलेगा. तो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, तो हो रही है आपकी गेट की प्रिपरेशन यहाँ पे मेरे साथ. ओके, तो आज के लिए इतना ही. और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे प्लस प्लान में डियर, तो फॉर 1 year, 1.5 year and 2 year प्रोग्राम के लिए नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड यू गाइस कैन यूज द कोड AISH10. सिमिलरली अगर आप आइकॉनिक की बात करते हो तो आइकॉनिक में भी नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस आर अवेलेबल, एंड नो कॉस्ट EMI में भी इफ यू गाइस नीड इंस्टेंट 10% ऑफ, देन अगेन यू कैन यूज द कोड AISH10. And this is the official Telegram channel of our team. And thanks a lot. Please share this video as much as possible and subscribe our channel, because only subscribers can communicate with us on our official YouTube channel. Bye bye guys, take care.